Hello, myself Sufia Khan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are gonna deal with abdomen. So yeah, there are some further topics in abdomen, but we are gonna start from anterior abdominal wall because there are some bones. So at all once we'll look at the bones later on, but today we are gonna deal with abdomen. Okay, fine. So there are some points. If you personally ask me which book I am referring to, I am usually I like if you would have already known this fact that if you want to excel in anatomy, you have to practice more and more diagrams. So from the diagram purpose, I would really suggest to Vishram is very good. Vishram Singh I'm talking about, not Vishram Singh textbook. It's very good, and other than that, it is like very good because there are diagrams which is very clear, and yeah, it's very clear. And I'm a kind of a person which usually learn things by looking at the diagrams. So yeah, I will suggest to Vishram, but nevertheless it is your topics whichever book you refer. But yeah, practice more and more diagram because diagram is a key in the key to anatomy, I would really say that. So let's just come back to the today's topic, which is abdomen. So what is abdomen? We usually prefer abdomen like stomach and all those things. Okay, so what is anterior abdominal wall? जो हमारे सामने का एरिया होता है, तो अभी हमें पहले इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो, the anterior abdominal wall covers a larger area in the body because as you can probably see, ऊपर के एरिया जिसको हम डायफ्राम वाला जो एरिया है, अबव एरिया, वो कितना छोटा है, और नीचे वाला वो भी छोटा सा ही है, ज़्यादा नहीं है. लेकिन वही तुम इन बिटवीन में देखोगे एब्डोमेन इट्स अ लार्जर एरिया इफ़ यू कंसिडर इट. अब इसकी बाउंड्रीज़ बतानी है. अगर तुम खुद भी अज्यूम करोगे बाउंड्रीज, तुम्हें फील हो जाएगी. देखो अबव अगर तुम जाओगे तो तुमको डायफ्राम फील होता है, बट डायफ्राम के भी थोड़ा सा नीचे हो तो तुमको सिर्फ प्रोसेस फील हो जाएगा. नीचे मत आओ, एट दैट पोजिशन ऑनली तुम्हें जिफी प्रोसेस फील होगा. व्हाट इज़ जिफी प्रोसेस? तुमने स्टर्नम के बारे में पढ़ा ही होगा. ऊपर का जो पार्ट होता है वो मैनिब्रम है, सेंटर वन इज स्टर्नम, नीचे वाला जिफी प्रोसेस. तो वो जिफी प्रोसेस तो अपर किससे बाउंडेड हुआ? ये जिफी प्रोसेस से बाउंड हुआ. और दोनों साइड पे किससे बाउंडेड है? तो कोस्टल मार्जिन. व्हाट डू मीन बाय कोस्टल? कोस्टल इज़ वेरी क्लियर, इट मीन्स रिब्स. तो दोनों साइड पे हमारे रिब्स होते हैं. ऑन ईच साइड इट इज़ बाउंडेड बाय द कोस्टल मार्जिन्स एंड ऑन टू द लोअर साइड. On the lower side, yeah, it is bounded by the iliac crest. What do you mean by iliac crest? We usually during the standing position we rest our hand over to, हम बोलते हैं ना, हमने हमारा हाथ कमर के पास रखे हैं, तो it is nothing but we rest our hand over to the iliac crest. Okay, so this is the overall. If you want to go deep to these boundaries, there are further you can get into this, but overall these are the boundaries from above zippy process on to the sides, coastal margins, below iliac crest. Yeah, it's done. So why is it important to learn anterior abdominal wall की anatomy? Why is it important? There are some reasons such as herniation. You would have already known herniation. What do you mean by herniation? hernia का meaning होता है protrusion. तो अगर हम abdomen के बारे में पढ़ें तो obviously it is related to abdominal herniation, protrusion of abdominal content. So और यहाँ पे हम mostly palpate करने के लिए यूज़ करते हैं. See, if some patient comes and complain you about this pain over that area, you are usually go and feel which area is that person is usually referring to. If it is referring to stomach side, or if it is referring to spleen, liver, kidney, all kinds of these things. So usually that's why it is important to learn the anatomy of the anterior abdominal wall. Okay, and during major surgeries we usually prefer this area. So the anatomy of anterior abdominal wall is usually very very important to learn during incisions or during herniation or during the palpation, all these things. Okay, so this is overall I am talking about anterior abdominal, what is it and why it is important, from where to where it extends, and all those things. Now further we get into deeper. So second topic I would say layers of the anterior abdominal wall. सो मोस्टली हम जब भी पढ़ते हैं एनाटॉमी में, लेयर्स में तो सब में पहले हम सीखते हैं स्किन.
हमें कुछ आए ना आए, हम स्किन सुपरफिशियल फेशिया ऑब्वियसली चिल्लाते ही है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, तुम तुम्हारे एब्डोमेन के पास हैंड रखो और तुम फील कर सकते हो स्किन विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, तुम ऑब्वियसली देख सकते हो। फिर सुपरफिशियल फेशिया है, फेशिया क्या होता है, फैटी लेयर होता है सुपरफिशियल फेशिया। एंड देन आता है मसल्स, उसके बाद एक्सटर्नल ऑब्लिंग मसल्स, इंटरनल ऑब्लिंग मसल्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स, फेशिया ट्रांसवर्सालिस मसल, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल मसल एंड पैराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम. Okay, don't get confused. I'm gonna explain this in detail one by one. This is very easy. Once you start getting into the diagrams, this will become very easy to you. All these muscles are really very easy. Skin is nothing, but skin के अंदर तुमको उसके cutaneous nerves, vessels याद रखने, which is also very easy. All you have to do is to keep the concentration at one place, and yeah, it's all done. There's nothing to worry about. It is very easy. This whole 8 layer is like a key to this anterior abdominal wall. Okay, so first memorize all of this. One by one we'll learn all the layers of the anterior abdominal wall. So one by one we're gonna learn. First one is skin. What is skin? यहाँ पे अगर स्किन पे तुम्हें अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुम्हें कोई लैंडमार्क दिखेगा तो वो है अम्बिलिकस. बट स्किन क्या है, यहाँ पे तुम स्किन में लिख सकते हो इट इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक फीचर. ये थिनर होता है और ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल. यहाँ पे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का मीनिंग क्या होता है, ये बैक की बात कर रहे हैं, जिसको हम पीठ बोलते हैं यूजुअली हिंदी में, वो पीठ की बात कर रहे हैं. तो वो जो स्किन होती है वो थिकर होती है, और आई कैन से बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स, टेंशन और रेजिस्टेंस अप्लाई किया जाता है एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे. इस वजह से इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की स्किन जो होती है वो थिनर होती है और सेंसिटिव होती है एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल. ओके, और यहाँ पे अगर मोस्ट ऑब्वियस फीचर देखा जाए इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का क्या हो सकता है, तो वो है अम्बिलिकस. अम्बिलिकस इज़ नथिंग, वो कुछ भी नहीं हो, बस वो एक साइट ऑफ अटैचमेंट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का फीटस में. ओके, ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ. जब हम उसको निकाल देते हैं तो दैट बिकम्स द स्कार. इट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस फीचर आई कैन से. अगर हम अम्बिलिकस की एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यहाँ पे T10 डर्माटोम. डर्माटोम का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी एक तुम नर्व्स ले लो जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया को सप्लाई करता हो, उसको हम डर्माटोम बोलते हैं. और यहाँ पे कौन सप्लाई करता है, तो T10 डर्माटोम सप्लाई करता है. और यहाँ पे एक इट एक्ट एज अ वाटर शेड लाइन फॉर वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, जहाँ पे मोस्टली वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज का काम होता है. एंड और यहाँ पे पोटाकेवल एनास्टोमोसिस होता है. व्हाट इज़ पोटाकेवल एनास्टोमोसिस, तो ये एक कनेक्शन होता है सिस्टमिक सर्कुलेशंस का, वो हम आगे की तरफ पढ़ने वाले हैं. डोंट गेट स्ट्रेस अबाउट इट, जस्ट इसका एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस याद करो कि ये T10 डर्माटोम होता है यहाँ पे, और वाटर शेड लाइन की तरह काम करता है. वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है यहाँ पे, और पोटाकेवल एनास्टोमोसिस का एक साइट है ये. ओके, इसके पोजीशंस डाइफर होते रहते हैं. अडल्ट में L3 to L4 के लेवल पे होता है. L3 L4 के लेवल पे हम मोस्टली देखेंगे ड्यूडेनम होता है. आगे वी गोना नो अबाउट दैट. न्यूबॉर्न में बहुत ज़्यादा पुअरली डेवलप होता है बिकॉज बच्चों का ज़्यादा कुछ डेवलप है ही नहीं, तो वी कांट से कि कौन से पोजीशंस पे या फिर कौन से वर्टिब्राई के लेवल पे हैं. और अगर तुम ओल्ड एज में जाओगे तो वो डिमिनिश हो जाता है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है. ओके, और फिर इसके बारे में हम अगर और कुछ बात करना चाहेंगे, सेकेंड वन सुपरफिशियल फेशिया. सुपरफिशियल फेशिया में क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस फैट होता है. यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट स्पेशली अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो चुका है तो वहाँ पे हमें ओबेसिटी होता है. ये मोस्टली फीमेल्स में देखा जाता है. और जो अपर रीजन होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, उसमें कम होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर साइड पे. ओके, इसको भी ये लोग ने ना क्या किया, फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया गया है, कैंपस फेशिया एंड स्कार्पा फेशिया. अगर तुम्हें इसमें कन्फ्यूजन है तो तुम ऐसे याद रख लो A B C, तो C फर्स्ट आता है, मतलब कैंपस फेशिया वो पहले आएगा. मतलब ये सुपरफिशियल फैटी लेयर, और स्कार्पा जो होता है डीप मेम्ब्रेनस लेयर होता है. यहाँ पे मेम्ब्रेन आ चुका है. अब तक की हम जो बात करें तो वो सुपरफिशियल ही बात कर रहे थे. स्किन इज ऑल्सो सुपरफिशियल फेशिया इज ऑल्सो सुपरफिशियल. फिर उसको फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हम सुपरफिशियल फैटी लेयर बोलते हैं, और डीप स्कार्पस लेयर या फिर डीप मेम्ब्रेनस लेयर बोला जाता है. कैंपस फेशिया में एज सच उसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ ये क्या करता है, ये ओके. तो फिर ये 2 लेयर्स होते हैं सुपरफिशियल फेशिया में. उसके बाद क्या था हमारे एक्सटर्नल ऑब्लिंग मसल्स. हाँ, उससे पहले हम बात करेंगे क्यूटेनियस नर्व्स की, क्यूटेनियस आर्टरीज़ की, क्यूटेनियस वेन्स की. ओके, सो हम बात कर रहे थे पहले उसके नर्व्स, आर्टरीज़ और वेन्स के बारे में. क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन. क्यूटेनियस ओवर द लाइनिंग ऑफ द स्किन, उसकी बात कर रहे हैं. स्किन के जस्ट नीचे जो भी नर्व्स लाई करते हैं, जो भी आर्टरीज़ लाई करते हैं, जो भी वेन्स लाई करते हैं. तो नर्व्स में क्या लाई करते हैं, तो लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व्स एंड सबकोस्टल नर्व्स.
एंड कहाँ से कहाँ तक ये स्टार्ट होता है, फ्रॉम T7 से लेके T12 तक. T7 to T11 नथिंग बट इंटरकोस्टल नर्व्स. T12 को हम सबकोस्टल बोलते हैं, जो सबकोस्टल नर्व. और जो एकदम लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट को कौन सप्लाई करता है, तो इट इज़ बीन सप्लाइड बाय फर्स्ट लंबार नर्व विच इज़ L1. और अगर दोनों साइड्स पे देखा जाए तो दोनों साइड्स पे T10 एंड T11 सप्लाई करते हैं. जब तुम ये डायग्राम देखोगे ना, इट विल गेट क्लियर टू यू. मैं डायग्राम साथ में तुम लोग को दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे देखते रहो. वहाँ पे जो भी डायग्राम से मैं जो भी बोल रही हूँ तुम उसको लाइक कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो. जस्ट लुक एट द डायग्राम विच इज़ आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ. T7 से स्टार्ट हो रहा है, T12 तक के ख़त्म हो रहा है. ओके, ये इसका क्या है, क्यूटेनियस नर्व्स है. T10 और T11 साइड्स में सप्लाई कर रहे हैं, और L1 है जो कि एकदम लोअर पार्ट ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करता है. ओके, लंबार नर्व. ये हो गया मेरे नर्व्स. ओके, नाउ लुक एट दी आर्टरी का डायग्राम. ओके, सो तुम्हें ऊपर के साइड दिख रहा है, यहाँ पे मैं तुमको फ़ोटो लगा दूँगी, तुम देख सकते हो. सब क्लेवन आर्टरी जो कि दो में स्प्लिट हुई है, मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी में और इंटरनल थोरैसिक आर्टरी में. ओके, सब क्लेवन आर्टरी कहाँ से आती है, ऑब्वियसली आर्टरी फ्लोटा की ब्रांच है ये. ओके, उसके बाद ये डिसेंड डाउनवर्ड करती है, दो में स्प्लिट हो चुकी है, मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी में और इंटरनल थोरैसिक आर्टरी में. ये इसके दो टर्मिनल ब्रांचेस है. अब जो इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है, जब तक ये रिब्स के पास होती है, इसका नाम इंटरनल थोरैसिक आर्टरी होता है. एज रीजन वाइज इनके नाम चेंज होते रहते हैं. अब ये आई एपिगैस्ट्रिक रीजन में, तो इसका नाम चेंज हुआ सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी में. सो इसमें सप्लाई कर रहे हैं. उसके बाद आता है मेरा, और फिर 3 सुपरफिशियल आर्टरीज आती है जो कि लोअर एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करती है. 3 कौन से सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेरेंटल आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स ईलियाक आर्टरी. ये किसके ब्रांचेस है, तो ये फेमरल आर्टरी के ब्रांचेस है. ओके, फेमरल आर्टरी कहाँ है, फेमरल आर्टरी मोस्टली सप्लाई करती है हमारे लोअर लिम्ब को. हम लोअर लिम्ब में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बट या अबव इसके जो थोड़ी बहुत ब्रांचेस होते हैं वो इसको सप्लाई करते हैं. ओके, सो आर्टरीज हो गया. नाउ अगेन लुक एट द स्क्रीन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. वेन्स के बारे में बात करेंगे हम. तो अगर तुम अम्बिलिकस के ऊपर का रीजन देखोगे तो तुम्हें एक्सेला फील होता है. व्हाट इज़ एक्सेला, जहाँ पे बॉयज़ डिओड्रेंट लगाते हैं, गर्ल्स भी डिओड्रेंट्स लगाती है, वो वाला एरिया. ओके, उसको हम एक्सेला बोलते हैं. एक्सेला के पास एक एक्सेलरी वेन होती है जो कि पूरे के पूरे लाइक जितने भी ड्रेन करती है. ओके, और अगर नीचे की तरफ तुम देखोगे तो नीचे की तरफ अगर मेजर कोई वीनस चैनल है वहाँ पे, तो वो है हमारा विच वन. देखो, जैसे तुमने ऊपर की तरफ क्या बोले, नीचे की तरफ मैंने बोला था ना, लाइक लोअर लिम्ब से एक वेन आती है जिसका नाम है ग्रेट सेफनस वेन. ओके, वो ऊपर की तरफ आके ड्रेन करती है इवेंचुअली इंफीरियर वेना केवा में. ओके, सो जो लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल है वो कहाँ से ड्रेन हो रहा है, वो ड्रेन करी ग्रेट सेफनस वेन. अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल जो कि अबव द अम्बिलिकस है, वो ड्रेन हो रहा है हमारे एक्सेला के अंदर. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट. जस्ट लुक एट द डायग्राम, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लियर टू यू. एज यू सी द डायग्राम, wrote it down, okay, in the exam hall. Now the lymph nodes, just look at the diagram again. जहाँ पे तुम्हें जो दिख रहा है, जैसे कि एक्सेला में है तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स. ओके, ग्राउंड रीजन में है तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स. दैट्स इट, ख़त्म. अबव द अम्बिलिकस कौन सप्लाई कर रहा है, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड. बिलो द अम्बिलिकस कौन ले रहा है या फिर ड्रेन कर रहा है, तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स. दैट्स इट ओवर एंड ऑल. नाउ वी आर गोना गेट इनटू द मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह. ओके, सो दिस वीडियो एंड्स ओवर हियर. ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, लाइक हाउ इट इज़, लाइक क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल टू स्टडी, टू रिलेट टू. बिकॉज अगर तुम्हें ये क्लियर है तो आगे का तुम्हें बहुत ईजी हो जाएगा. ओके, और ये क्लिनिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जस्ट गिव मोर एफर्ट एंड गिव मोर टाइम टू दिस वन. बिकॉज अगर ये तुम्हें क्लियर हो गया, द following topics would be very easy for you. You don't have to waste further time again and again revising it if you clear this right now. Okay, thank you. Follow for more such videos.